गुड मॉर्निंग डियर ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यवान प्रमाणिक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम विभिन्न टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will discuss about the Frederick Chaudieu vision of the world. Next, we will discuss about the French Revolution and the idea of the nation. The making of nationalism in Europe. In this, we will discuss about the aristocracy and the new middle class. And again, we will discuss about the liberal nationalism. After then, we will discuss in this video about a new conservatism after 1815, then the revolutionaries. We will discuss the age of revolution about 1830 to 1848. In this, so many topics we will discuss, like the romantic imagination and national feeling of people, hunger, hardship, and popular revolts, the revolution of the liberals. Next, we will discuss about the making of Germany and Italy. Germany, can the army be the architect of a nation? Then we will discuss about the topic of Italy unified, the strange case of Britain, visualizing the nation. Then we will again discuss about the nationalism and imperialism. So in this video we will cover all these topics. तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। सारे टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। So let us start today's session. The rise of nationalism in Europe. In this, we will discuss about the Frederick Chaudieu vision of the world. कहने का मतलब फेडरिक शोरियो का जो वर्ल्ड के विषय में जो विजन था। फ्रेडरिक शोरियो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे, ठीक है ना। और उसने सपनों का एक संसार रचा था, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला की पहले चित्र, जो फर्स्ट फिगर था, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्रों और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इस टाइप से इन्होंने अपना जो विजन है एक राष्ट्र के लिए, उसको फिगर आउट किया। So Frederick Chaudieu, a French artist, in 1848 prepared a series of 4 prints. 4 चित्र बनाए थे इन लोगों ने, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. मतलब किस तरह से एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक देश या संसार का निर्माण हो सकता है, इसको इन्होंने विजुअलाइज किया था। First print shows the people of Europe of America marching in a long train. And offering homage to the Statue of Liberty. As they pass it, the torch of enlightenment was carried by a female figure in one hand and the charter of the rights of men in other hand. एक फीमेल
एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब लोगों का क्या अधिकार होना चाहिए उसका एक चार्टर पकड़े हुए हैं। On the earth in the foreground lies the shattered remains of the symbol of absolute institutions. पृथ्वी में जगह जगह पर जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस थे उनके अवशेष बिखरे पड़े थे जहां तहां पर, मतलब उनको ध्वस्त कर दिया गया था। In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costumes. सोरियो के उटोपियन विजन के हिसाब से सभी देश का अपना अपना एक फ्लैग था, अपना अपना एक पहचान था, अपना अपना एक कस्ट्यूम था। The procession was led by the United States and Switzerland, followed by France and Germany. Following the German people are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. प्रोसेशन को यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे देश थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, जैसे कि आपका फ्रांस और जर्मनी है, ये भी उनको फॉलो कर रहे थे। और कुछ ऐसे देश थे जो जैसे कि सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, ये सभी देश भी उनको उनके पीछे पीछे उनको फॉलो किए जा रहे थे। नेतृत्व आपका यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। From the heavens our priests, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. आसमान से भगवान, ऊपर से ईसा मसीह और संत के फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए। जो चित्र बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक रूप में किया है। मतलब किस तरह से लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं, भाईचारा के रूप में हैं, मतलब पूरा एक डेमोक्रेटिक रूप को इन्होंने प्रदर्शित किया है। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in political and mental world of Europe. The end result of these changes was emergence of national state. 19th century के दौरान मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर गई थी, ठीक है ना, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भी भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में एक बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट जिसको कहेंगे, इसका उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, मतलब एक सेंट्रल पावर की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों के सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। हम लोग इस चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं और 19th सेंचुरी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के अस्तित्व में आए, जो भी चीज है कैसे आए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे।
So let us discuss about the French Revolution and the idea of the nation. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट कैसे हुआ और एक नेशन, एक राष्ट्र का आइडिया लोगों के अंदर में कैसे उभरा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। In 1789, nationalism came with French Revolution. फ्रेंच 1789 की बात है। नेशनलिज्म जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा हुआ। एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची। 1789 में जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, इसके पहले फ्रांस में एक निरंकुश राजा, जिसको कहेंगे हम लोग मोनार्चियल गवर्नमेंट, राज करता था। उसके पावर को सॉवरेनिटी यानी एक डेमोक्रेटिक शासन के रूप में बदला गया। मतलब मोनार्चियल गवर्नमेंट के हाथ से पावर को छीन के एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट के हाथ में हस्तांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब लोगों के समूह में, कहने का मतलब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से पब्लिक गवर्नमेंट की ओर ट्रांसफर कर दिया गया पावर। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वेर इंट्रोड्यूस्ड सच एज द आइडिया ऑफ ला पार्टी, द फादरलैंड एंड ली सिटीजन, जिसको हम लोग सिटीजन कहते हैं। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर वाज चूजन, रिप्लेस द फॉर्मर वन। इसके बाद में विचारों ने, लोगों का विचार बदल गया और सभी कोई ग्रुप, जिसको कहते हैं समुदाय का विचार पर बल दिया जाने लगा। सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रेंच फ्लैग ने अपना जगह ले लिया और स्टेट जनरल का चुनाव जो था वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। Democracy destroyed in France by Napoleon, and the Civil Code of 1804, known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before law, and secured the right to property. अब जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य आया, इसमें क्या हुआ, डेमोक्रेसी जो था वो लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। कहने का मतलब इन्होंने सिविल कोड 1804 बनाया था, सिविल कोड, ठीक है ना, जिसको हम लोग नागरिक संहिता 1804 के नाम से जानते हैं, या तो इसको हम लोग नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आपका जन्म के आधार पर जो अधिकार प्राप्त थे लोगों को, उसको हटा दिया था और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया। इस कोड को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन लोगों में भी लागू किया गया, ठीक है। इस कोड में सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया, किसानों को भूदासत्व, जिसको हम लोग सेफडर्म कहते हैं, और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। कारीगरों की श्रेणी में कारीगर जो थे, वर्कर्स जो थे, उसका जो यूनियन था उसको नियंत्रण से हटा दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इस सब व्यवस्था में सुधार किया गया। फार्मर्स, वर्कर्स, लेबर्स और बिजनेसमैन
सबको कुछ ना कुछ आज़ादी दी गई। जो बिजनेसमैन थे और खासतौर पर अगर देखा जाए तो सामान बनाने वाले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, इन लोग समझने लगे कि एक समान कानून जो है, जो उसका मेजरमेंट था, मानक कहेंगे भार या नाप तोल की जो सिस्टम थी, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होती थी। सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में लोगों को समस्याएं होती थी, लेकिन जब मानक एक भार या नाप का एक मानक आ गया, ठीक है ना, मानक आ गया, तो उसमें लोगों को सुविधाएं होने लगी। ये 1815 के बाद का यूरोप है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं किस तरह से यूरोप का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers and their autonomous territories. आपको बता दें एक बात, जो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे उस समय, ठीक है ना। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। जैसे एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के तिराल, ऑस्ट्रेलिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। The aristocracy and the new middle class, मतलब किस तरह से एक इसके बाद नया मिडिल क्लास का उद्भव होता है। The aristocracy was the dominant class on the continent politically and socially. उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का एक बहुत भी बड़ा वर्ग था। The majority of the population was made up of the peasantry, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन किसका था? peasantry का था, किसानों का था। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. 18th century के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो उसमें नया सोशल ग्रुप्स तैयार हुए, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है ना, और दूसरा मिडिल क्लास, जिसमें आपका इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इसलिए समाज में क्लासेस बने या वर्गों में बटा, कारण है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ लेबर्स की आवश्यकता थी। इंडस्ट्री को नॉन स्किल लेबर की आवश्यकता थी पहला, दूसरा स्किल लेबर की आवश्यकता थी, और तीसरा इंडस्ट्री को चलाने वाले। तो इसी तरह से लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से क्लास बनना स्टार्ट हुआ। एक मिडिल क्लास का उद्भव होने लगा। और इसी के साथ क्या हुआ, कुछ कुलीन विशेषाधिकार समाप्त हो गए और शिक्षित और उदारवादी वर्ग जो थे, इसके बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। कहने का मतलब लोग शिक्षित होने लगे, लोग जागरूक होने लगे,
तो यहाँ पर से एक राष्ट्रीय एकता का जो विचार था वो धीरे धीरे इमर्ज करने लगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो लिबरल नेशनलिज्म है क्या, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर, इसका मतलब होता है फ्री। द राइट टू वोट and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. उस समय के लिबरलिज्म के हिसाब से उस समय क्या था, जो जिसके पास प्रॉपर्टी था उसी को वोट देने का अधिकार था। लिबरल का मतलब, लाइबर का मतलब ही, लिबरलिज्म का मतलब ही होता है फ्री यानी उदारवादी, और लाइबर का मतलब होता है फ्री। लेकिन उस समय जिसके पास प्रॉपर्टी था उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, और जिस मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं था या तो कोई वुमेन है उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। In 1834, a custom union of Gelverin was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. 1834, कस्टम यूनियन और जर्वलिन वाज फॉर्म, मतलब उस समय एक कस्टम यूनियन था, ठीक है ना, या उसको हम लोग जर्वलिन भी कह सकते हैं। उसको फॉलो किया गया, उसका निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स को जोड़ा गया, और इस यूनियन के द्वारा जो टैरिफ बैरियर्स था, ठीक है ना, उसको हटा दिया गया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थे उसको 30 से 2 में ले लाया गया, मतलब कम कर दिया गया। पहले 30 था, बाद में 2 हो गया। (1815) के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म सिस्टम आया, इसके बारे में देखते हैं। 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वे derived by a spirit of conservatism. Conservatives believes in monarchy. कंजर्वेटिज्म जो कंजर्वेटिव्स थे वे मोनार्ची गवर्नमेंट पर बिलीव करते थे। The church, social hierarchies, properties, and that the family should be preserved. इसमें मतलब एक मानना था, जो चर्च है या सोशल हायरार्कीज मतलब जिसमें हम लोग ऊंच नीच कह सकते हैं। सोशल हायरार्कीज ऊंच नीच की परंपरा जो थी, चर्च की जो परंपरा थी, प्रॉपर्टीज थे, फैमिलीज थे, सबको प्रिजर्व किया गया, इस सबको स्थायीकरण किया गया या इसको बढ़ावा दिया गया। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. अब ऑटोक्रेटिक मोनार्ची जो यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची था, इसमें फ्यूडलिज्म और सेफ्डोम सिस्टम को हटाया गया, इसको एबोलिश किया गया सोसाइटी से। (1815) representatives of the European power का जो रिप्रेजेंटेटिव
स्टेट थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। वियना में एक मीटिंग्स रखे यूरोप के सेटलमेंट्स के लिए, इसको हम लोग वियना की संधि भी कहते हैं या तो ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं। इस समय ये बर्बन डायनेस्टी जो थे इसके पावर को रिस्टोर किया गया, मतलब बर्बन डायनेस्टी का पावर रिस्टोर हुआ दोबारा से। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी, फ्रांस का जो टेरिटरीज था वह हाथ से निकल गया। इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो नेपोलियन के अधिकार में था। The major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservatism orders was freedom of press. एक लिबरल नेशनलिस्ट का बहुत बड़ा एक इश्यू था, जो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर था उसका उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। Now we will discuss about the रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने, कहने का मतलब इस समय बहुत ज्यादा भय था लोगों में, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। मतलब जो रिवोल्यूशनरीज थे इन लोग को दमन कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपियन राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, मतलब चोरी छुपके लोग काम करते थे उस समय। इन 1815 सेक्रेट सोसाइटीज जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, सेक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। क्योंकि उस समय उदारवादी राष्ट्रवादियों को दबाया जाता था। रिवोल्यूशनरी अपोज्ड मोनार्चिकल फॉर्म्स, जो मोनार्चिकल गवर्नमेंट था उसका जो सिस्टम था उसको अपोज करते थे रिवोल्यूशनरीज। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ते थे। द इटालियन रिवोल्यूशनरीज, जिप्सी मैजिनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे। इनका जन्म जेनोवा में 1807 को हुई थी। फाउंडेड 2 more underground societies. First, Young Italy in Marseille, and second, Young Europe in Berne. जिप्सी मैजिनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना किया था। पहला क्या था? यंग इटली इन मार्सेली, एंड दूसरा था यंग यूरोप इन बर्ने। Whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German state. इन सभी देशों के जो यंग मैन थे और इन 2 सोसाइटीज का मेंबर थे। अब आ जाता है आपका एज ऑफ रिवोल्यूशंस, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच। 1830 to 1848, this period is known as Age of Revolution. In July 1830, Bourbon king were overthrown by liberal revolutionaries. देखिए किस तरह से पहले मोनार्चिकल गवर्नमेंट था, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, फिर नेपोलियन गवर्नमेंट आया, फिर बर्बन गवर्नमेंट आया। अब फिर बर्बन गवर्नमेंट को भी, बर्बन किंग्स को भी ओवरथ्रोन किया गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये साबित हो रहा है कि यूरोप में कई बार रिवॉल्यूशन हुए, किसके लिए? फ्रीडम और लिबर्टी के लिए। सो दिस इज
think about 1830, July 1830, Bourbon king were overthrown by liberal revolutionaries, जो गुप्त रूप से काम कर रहे थे रिवोल्यूशनरीज उस समय, देखिए ठीक है ना, सोसाइटी बना रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उनके द्वारा बर्बन किंग को उखाड़ फेंक दिया गया। वो इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड। द जुलाई रिवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. In 1821, Greek struggled for independence. अब धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन का दौर बढ़ते गया और जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया जो 1815 के बाद हुई, जो कंजर्वेटिज्म जो प्रतिक्रिया था, इसके दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उसे अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंक दिया है। ठीक है, उनकी जगह एक क्या ले लिया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो गया है, और जिसका लुइस फिलिप जिसका हेड है। इस प्रकार मेटरनिक की एक बात हमको याद आता है इसमें। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमानी कल्पना और राष्ट्र की भावना, नेशनल फीलिंग्स क्या था? कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और मतलब जो टेरिटरीज का विस्तार था, इससे नहीं हुआ था, सिर्फ इसी से नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति, जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, इसका भी अहम भूमिका निभाई। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए विभिन्न प्रकार के कलाकारी का किया गया था। लोग कविताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करते थे, कहानियों के द्वारा जागरूक करते थे, संगीत के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने का कोशिश करते थे। तो ये सब सारे एक्टिविटीज थे, यही लोगों के अंदर में नेशनल फीलिंग्स को पैदा किया। रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. Language also played an important role in developing nationalist sentiments. Cultural activities जो थे वो तो नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया ही, साथ में लैंग्वेज तो था, लैंग्वेज भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल, लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंट रोल था टू डेवलप nationalist sentiment. रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। सभी जगहों पर रशियन लैंग्वेज में ही बात किया जाता था, सभी काम होते थे। एंड इन 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. जिसको 1831 में जो आर्म्ड रेबेलियन रशिया के अगेंस्ट में किया गया था, रशिया रूल के अगेंस्ट में, उसको क्रस्ट कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया। एटीन 1830 की बात है, ठीक है ना। इस समय यूरोप में हंगर, भूख, कठिनाई बहुत ज्यादा थी और
इसके कारण भी लोगों ने रिवोल्ट किया था। यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830 में यूरोप में एक इकोनॉमिक हार्डशिप था, मतलब वहाँ का इकोनॉमी उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में था। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population. फर्स्ट हाफ 19th century के फर्स्ट हाफ में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, खाने की वस्तुओं का सामान के दामों में वृद्धि और खेती जो उत्पादन होती थी वो सही नहीं हो रहा था उस समय, और यही कारण से सभी तरफ गरीबी और भुखमरी छा गया था पूरे शहर में, पूरे कंट्री में। इन 1848 फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट brought the population of Paris out of the road. 1848 में क्या हुआ? सभी तरफ भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी फैलने लगा। इसी बीच 1848 में जो लिबरल्स थे उन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। इन 1848 a revolution led by the educated middle class was underway. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। Men and women of the liberal middle class demanded creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. जो 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था ये एजुकेटेड लोगों का रेवोल्यूशन था। इसमें इन लोगों ने क्या डिमांड किया कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होने चाहिए। A large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an old German National Assembly. बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जो फ्रैंकफर्ट में जमा हुए और नेशनल असेंबली को समर्थन किया। ऑन 18 मई 1848 जो 831 elected representatives marched to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण किया। और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेगा। कहने का मतलब अपना मोनार्चिकल या तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं अपनाएगा। जब रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज बनाने की पेशकश की तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। कहने का मतलब ये कि जो नेशनल असेंबली था इसके विरोध में जो खड़े थे उन्होंने उनका साथ दिया। जहां पर जो कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया
वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अब संसद में जो मीडियम वर्ग था इसका प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया। सही बात है। Constitution draft for Germany nation was headed by the monarchical subject to a parliament. The crown was offered to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, but he rejected it. It has joined other monarchs to oppose the elected assembly. The middle class dominated the parliament, and a large number of women participate in the liberal movement. और इस liberal movement में बहुत सारे women भी participate किए थे। Women form their own political association. अब women अपना एक political associations का गठन करने लगे। Founded newspaper and took part in political meetings and demonstrations. But they were still denied suffrage, right to vote, right during the elections of the assembly. Women अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन तो स्टार्ट कर ही चुके थे। न्यूज़पेपर उन लोगों ने न्यूज़पेपर भी अपना स्टार्ट किया, लेकिन और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थे इसमें भी अपना हिस्सेदारी दिखाए, लेकिन फिर भी उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया। उनको वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला। In the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Prussia. जो 1848 की बात है, इसमें जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची, मतलब 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज आंदोलन को दबा पाने में कामयाब, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी जो है राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मिडिल और ईस्ट यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में और रूस में जो शेफडर्म का सिस्टम था, या तो बॉन्डेड लेबर थे, ठीक है ना, जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, इसको समाप्त कर दी गई। और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा क्या कहेंगे, मतलब ज्यादा उन लोगों को महत्व देने लगे, स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। Now we will discuss about the making of Germany and Italy. जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। In this we will discuss first about Germany can the army be the architect of nation. मतलब जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? Nationalism in Europe moved away after 1848.
and Germany and Italy came to be unified as a nation states. Prussia took over the leadership of the movement for national unification. The architect of this process was its chief minister, Otto von Bismarck, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. तो 1848 में जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उस समय पूरा शासन और पूरा मूवमेंट जो था, जो भी प्रोसेस था, वो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा किया गया और जिन्होंने प्रुशिया के आर्मी का सहारा लिया था। In 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor. 1871 में प्रुशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया। An assembly was held to proclaim the new German empire. The process of nation building demonstrated the dominance of Prussian state power. The currency, banking, legal and judicial system in Germany were modernized. जो विलियम फर्स्ट है, इनको जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। इस राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, जो बैंकिंग सिस्टम थी, जो लीगल सिस्टम था और जो जुडिशियल सिस्टम था, उसको मॉडर्नाइज करने पर ज्यादा ध्यान दिया। और प्रसा के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, स्टेप्स थे और उनकी जो प्रोसेसेस थे, बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल का रूप, या तो एक मॉडल का मतलब रूप लिया, मॉडल बना। ये पिक्चर है जर्मनी के एकीकरण की 1866 टू 71 के बीच का। Now we will discuss about Italy unified. अभी हम चर्चा किए जर्मनी के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे इटली के बारे में। इटली जो था वो, इसमें भी आपका जो पॉलिटिकल डिवाइडेशन था, एक बहुत बड़ा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुत राष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। और 19th सेंचुरी की बात करें, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स इन द मिडिल ऑफ द 19th century, and among all the 7 states, Sardinia, Piedmont was ruled by the Italian princely house. और सार्डिनियंस पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था इसमें। All the regions were dominated by different kings. In the 1830s, Gypsy Mazzini formed a secret society called Young Italy. जो भी रीजन्स थे अलग अलग, उसमें सभी पर अलग अलग राजा थे। 1830 की बात करें तो जिप्सी मैजिनी ने एक सेक्रेट सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम यंग इटली। द मूवमेंट वाज लेड बाय चीफ मिनिस्टर केवॉर। यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ वो लीड किया था चीफ मिनिस्टर केवॉर ने। इन 1859 सर्डिनिया पिडमंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स। In 1860, they marched into South Italy and the kingdom two Sicilies
and succeeded in winning the support of the local peasants. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट किया था चीफ मिनिस्टर कैबोर ने, सर्डिनिया पिडमंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थे उनको डिफीट कर दिया था 1859 में। 1860 में वे साउथ इटली की तरफ रुख किए एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट, और वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट उन लोगों को प्राप्त हुआ। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को राजा घोषित कर दिया गया यूनाइटेड इटली का। अब हम एक ऐसी दास्तां की चर्चा करेंगे जो ब्रिटेन की है, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन वॉज द मॉडल ऑफ द नेशन एंड prior to the 18th century there was no British nation। 18th century की बात है, ठीक है ना। जो ब्रिटेन का निर्माण हुआ था, ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण अचानक हुआ, कोई उथल पुथल या क्रांति नहीं हुआ था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी, ठीक है ना। तो 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन वाज द मॉडल ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र का एक मॉडल के रूप में माना जाता है उसको। एंड prior to the 18th century there was no British nation। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। The British nation became powerful as steadily grew in wealth, importance and power। मतलब अचानक से इसका धन संपत्ति कहेंगे या तो इसका इंपॉर्टेंस कहेंगे, इसका पावर कहेंगे, अचानक से इसका डेवलपमेंट हुआ था। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन की बात अगर हम करते हैं तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है ना, से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। In effect, that England was able to impose its influence on Scotland। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। In 1801, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom। The symbol of the New Britain, नया ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम नया ब्रिटेन था, उसका सिंबल था द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वहाँ उस समय का नेशनल एंथम था न्यू ब्रिटेन का। द इंग्लिश लैंग्वेज वेर एक्टिवली प्रोमोटेड, और इंग्लैंड में इंग्लिश को प्रमोट किया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, तो एक राष्ट्र जो है इसकी दृश्य परिकल्पना किस तरह से लोगों ने किया। Now we will discuss about visualizing the nation। देखिए, किसी शासक या किसी का चित्र या किसी का मूर्ति, इसको रूप में अभिव्यक्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, एक नेशन को, ये बहुत बड़ा टास्क है। किसी आदमी का आपको अगर कहा जाए किसी का फोटो बनाइए, फिगर बनाइए, आप कुछ भी बना दीजिएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 50 साल बाद आप अपने गांव को, अपने शहर को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ का हर कुछ सिस्टम हो, हर कुछ सिस्टम करने का मतलब लोगों का रहन सहन, लोगों का व्यवहार, लोगों का जीवन शैली, लोगों का आजीविकोपार्जन और बहुत सारे, किस तरह से इसको इमेजिनेशन करना, इसको एक चित्र देना, ये बहुत बड़ा टास्क है।
So in the 18th and 19th centuries, artists represented a country as a person and nation as a female figures. During the French Revolution, female figures portray ideas such as liberty, justice, and the republic. Liberty is represented as a red cap or a broken chin. Justice, a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. उस समय वोमेन के रूप में, लिबर्टी को वोमेन के रूप में दर्शाया गया, और लिबर्टी को रेड कैप के रूप में लिबर्टी को दर्शाया गया, ब्रोकन चेन को जस्टिस के रूप में दर्शाया गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिंबल्स तैयार किए गए जिसके द्वारा लोगों ने उसको विजुअलाइज किया। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया जिसकी आंखों में पट्टी बंद भी है और वह तराजू पे लिए हुए। इसी प्रकार के जो वोमेन का जो रूप का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया, और इसका फ्रांस में इसका क्रिश्चियन नेम दिया गया था मारियाना। Next we will discuss about the nationalism and imperialism. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है? Nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. After 1871, the most tensioned area was called Balkans region, comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. जो 19वीं सदी की बात है, या तो हम कहेंगे 19वीं सदी का 19th सेंचुरी की जो अंतिम लास्ट 1/4 एक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा उस समय, ठीक है, जो सदी के प्रथम भागों में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मतलब एक टेंशन का एरिया बन गया था उस समय। ये जो बल्कन्स का रीजन है वो एक टेंशन का एरिया बन गया था। Ottoman Empire made the Balkans region explosive, and all through the 19th century they strengthened themselves through modernization and internal reforms. Due to various conflicts, the Balkan became an area of intense conflict. Balkans region भड़क उठा था उस समय पूरे 19th सेंचुरी। मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते थे और बाल्कन्स जो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था। During this period, intense rivalry built among the European power over trade and colonies, as well as naval and military might be led to a series of wars in the region and finally the First World War. उस समय बहुत सारे ऐसे
विरोध हुए, अपोज हुए। आपस में टकराव हुआ लोगों के बीच, एक राज्य दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका जाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां बहुत जटिल हो गई थी और जितनी भी शक्तियां थी आपस में सबका कंट्रोवर्सी होता था। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ते गई, रूस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब जितना भी बाल्कन जो ताकत था, बाल्कन पर अपने शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। इससे इलाके में बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे वार हुए, एक सीरीज ऑफ वार हुआ जो कि फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार का रूप ले लिया। In 1914, Europe was disastered because of nationalism. नेशनलिज्म के कारण यूरोप में एक डिजास्टर कहेंगे, मतलब महाविपदा की ओर ले गया था यूरोप को ये नेशनलिज्म। Aligned with imperialism, anti-imperial movements were developed, but they all struggled to form independent nation states. But the idea of nation states was accepted as natural and universal. यूरोप में बहुत बड़ा विपदा आ चुका था उस समय। लोग नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, लोग लिबरलिज्म की मांग कर रहे थे, लोग नेशनलिज्म की मांग कर रहे थे और एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स चला रहे थे। लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का डिमांड कर रहे थे। इसी तरह से अंततः क्या हुआ ना, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। जो नेशन स्टेट की बात जो है, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। So thanks for watching our video. I hope so. I have tried to make you understand about the topic the rise of nationalism in Europe. मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। So dear friends, join our classes for life skill development, motivation, competition theory, study material for students, and still you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and share our YouTube channel for more updates. Thank you very much. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।